May I come in, ma'am? Yes, please. Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. Have a seat. Thank you, ma'am. Uh, Introduce yourself. I am Kiranpreet Kaur, MA Economics B.Ed, passed in 2021 with first division. My teaching experience from 2014, I start my journey as teaching is my passion, ma'am. So I become as an assistant teacher in my mother coaching center for the post of PGT Economics. There I teach 9th, 10th Math Science and 11th, 12th Accounts and Economics. Then in 2017 I worked in Shamudiyal Public School for 3 years. Then, during lockdown period, I got a best opportunity to work as an online teacher with two reputed schools. One is Just Public School and the other is SPSC International Academy. There I teach 11th, 12th accounts and economics. Ma'am, I want to tell you one more thing that currently I am working as a digital creator on a YouTube platform. My channel name is Manambao and the channel is growing and there I am posting videos. First, I post videos for 11th, 12th accounts and economics. Then, currently, I am posting videos for the aspirants for the post of PGT, and PRT. And do you have any experience of Kendriya Vidyalaya Sangathan School? Yes, ma'am. In 2022, I gave interview in Vikaspuri cluster and there I got first rank in the selected list of panelists. Okay. So, because of the first rank achievement, this was my life first achievement. Okay. So, I got an opportunity to work with Kiwi in Delhi Camp number one, and then I worked in Kiwi Tagore Garden. Where are these schools? Delhi. What do you say? Ma'am, these schools are in Delhi region, in West Delhi region. Okay. Okay. In these two schools, Kendriya Vidyalaya, you give. Yes, I worked as a guest teacher for Okay, the you post of work as a guest teacher. for the post of PGT Economics, ma'am, because I was selected as the first ranker in the selected list of panelists. The list, it was a cluster wise list. Okay, it means you are guest teacher of Yes, ma'am. Kendriya Vidyalaya Sangathan. Okay, why you want to join Kendriya Vidyalaya? Ma'am, thank you for the question. I want to join KVS because just now I have told you that I worked in KVS because of the KVS culture. It influenced me and motivate me, highly motivate me to work with KVS culture because in KVS all the students make a teacher scientific explorer to learn new things from different culture, and also our senior teachers, our principal ma'am and vice principal staff members of KVs always help me to explore new things. I'm a teacher being a good learner and being a good listener. I always listen to them and keep on learning new things. Okay. अगर आपको आप जानते हैं केंद्र विद्यालय संगठन में आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, तो Yes, आप ma'am. उसको कैसे मैनेज करोगे?
मैम पहली बात मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि इंसान का जो कर्म होता है उसको उस पे ही फोकस करना चाहिए। अब मेरा कर्म है कि मुझे बच्चों को टीच करना है, तो आई डोंट हैव प्रॉब्लम विद माय पोस्टिंग, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो पेरेंट्स हैं और जो मेरी फैमिली वो एडजस्टेबल है, दे आर रेडी टू रिलोकेट मी, बिकॉज टीचिंग एक मेरा पैशन है। Okay, they are ready you to relocate any other state. Okay. But what about after your marriage? How you manage? आई एम गोइंग टू मैरी अ सेंट्रल एम्प्लॉय के साथ एक साथ Oh. इकट्ठे पोस्टिंग हो जाए तो। Okay. Ma'am, what is NEP 2020? NEP 2020 is a national education policy which is launched on 29 July 2020. It is a reform in the India's education system that focuses on quality, inclusivity, and lifelong learning process. Previously, we were following NEP 1986. The structure which was 10 plus 2, we all know that. The structure 10 plus 2 is first a child have to go through a primary level, then secondary and then senior secondary. Yes. But 10 plus 2, this education system got improved to 5 plus 3 plus 3 plus 4 structure. Ma'am, what is this 5? 5 plus 5. Five is it the stages? We are talking about the stages upon which a child have to go through. First stage is preparatory stage. In preparatory stage, the child, the preparatory stage start from 3 years. Okay, 3 to 6. The child is in preschool, Anganwadi, and Bal Vatika, and then class 1 and class 2. This is for the age 6 to 8, because we are including 3 to 8, and it makes 5 years in foundational stage. This And in 5 years foundational. Yeah, ma'am. And in foundational stage, we are going to teach the child with play-way learning and also with the activity-based learning. Okay. Okay, ma'am. What is FNL? The full form of FLN is Foundational Literacy and Numeracy. It refers to the basic skills. देखिए मैम, ये जो FLN है ना, ये बच्चे की बुनियाद मजबूत करता है, उसकी रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स की स्किल्स में। अच्छा, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ्स के स्किल्स। और ये फोकस किए, देखिए ये करता है बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, क्लास 1, क्लास 2 तक बच्चों की जो फाउंडेशन है उसको एक इंश्योर करता है कि अब हर बच्चा बेसिक रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी में निपुण बने। मैम जैसे कि एक पेड़ होता है, पेड़ की जो जड़ अगर मजबूत हो जाए तो पेड़ पूरा हरा भरा निकलता है। उसी तरीके FLN जो है बेस है, जड़ मजबूत करता है बच्चे की, कि बच्चा निपुणता से आगे आने वाली सीनियर क्लासेस में बढ़े और एक अच्छे मार्क्स सिक्योर करे, क्योंकि जब तक बेसिक अच्छी रहेगी तो आगे उसकी बिल्डिंग बनाने का कोई बेनिफिट नहीं। अच्छा मैम, जैसा कि आप कह रहे हैं कि FNL के हिसाब से
आप 3 to 6 बाल वाटिका स्टूडेंट्स को प्लेवे मेथड से आप पढ़ाएंगे, जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो आपको एक टारगेट दिया जा रहा है कि आपको एक क्लासरूम के अंदर एफएलआई आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। आप एक क्लासरूम के अंदर प्लेवे बाल वाटिका के लिए 3 to 6 लर्नर्स के लिए आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे एफएनएल एक क्लासरूम के अंदर। मैम सबसे पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगी, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाली हूँ। ओके। तो पहले देखिए, फाउंडेशनल स्टेज में मैंने आपको बता चुकी हूँ कि बच्चे को हम प्लेवे और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाएंगे। तो अब बच्चों को हम उनकी बुनियाद मजबूत करने के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को सिखाने के लिए बुनियादी तौर पे बात करेंगे कि अब बच्चे को हम बच्चे की भाषा में सिखाएंगे। मैम बच्चे को आप बताइए सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खेलना पसंद है, स्टोरी टेलिंग, रहस्यमय कहानी से अगर मैं बच्चों को सिखाऊंगी तो उनका इंटरेस्ट बनेगा और वो ज्यादा अच्छे से कंसेप्ट को सीख पाएंगे। और मैम पोएम के बारे में आप क्या कहते हैं छोटे बच्चे के लिए? देखिए मैम, पोयम जैसे मैं बात करूं, पोयम एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जैसे कि एक सिंपल पोयम में मछली जल की रानी है, तो इससे बच्चों को पता चला कि फिश एक क्रिएचर है जो कि वाटर में रहती है और विदाउट वाटर फिश मर जाएगी। इससे बच्चों को याद हो गया पोयम में कि मछली जल की रानी है, हाथ लगाओगे तो मर जाएगी, बाहर निकालोगे तो सॉरी हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। आई एम रियली सॉरी, बिकॉज फ्लो में हम चलते हैं तो। और दूसरी चीज कि स्टोरी टेलिंग से बच्चा रहस्यमय और खुद क्रिटिकल थिंकिंग में जाता है कि अब अगर एक मैंने उसको रहस्यमय स्टोरी बताई तो उसकी जागरूकता और बढ़ेगी, क्योंकि 6 साल तक बच्चों का 85% जो उनका ब्रेन है वो डेवलप हो चुका होता है और इस स्टेज में उनकी कॉग्निटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैम आपके व्यू से स्टोरी से भी बच्चे लर्न कर पाते हैं? यस मैम, मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ। थैंक यू कि आपने मुझे अलाउ किया मैम। तो देखिए, जैसे कि अब आपको सबको पता है कि कैप्सलर की स्टोरी जो बहुत फेमस है, वो स्टोरी से हम बच्चे को स्टार्ट करेंगे, सीधा बच्चे को टफ से टफ ईवीएस के सवालों तक लेके जाऊंगी। तो देखिए, स्टोरी है कि एक कैप्सलर पेड़ के नीचे बैठा था, कैप्सलर के बैग में बहुत सारी टोपियां थी, पेड़ के ऊपर बंदर थे, बंदरों ने कैप्सलर की सारी टोपियां चुरा ली। तो अब कैप्सलर जब सो के उठा तो उसने देखा कि मेरी सारी टोपियां तो गायब है। तो अब कैप्सलर ने एक योजना बनाई। कैप्सलर के सिर पे टोपी थी, उसने अपनी टोपी गिरा दी। अब जो कि बंदर नकलची होते हैं, इमिटेट करते हैं ना, नकल करते हैं बंदर, तो बच्चों को ये पता चला कि जो बंदर है वो नकल करते हैं। इसलिए जैसे ही कैप्सलर ने टोपी नीचे गिराई, वैसे ही बंदरों ने भी टोपियां नीचे गिरा दी। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ कि जब बंदरों ने टोपियां नीचे गिराई तो बताओ बच्चों, वो जो टोपी है वो कहाँ गई? नीचे गई, ऊपर गई, किधर गई?
अपनी मम्मी से पूछना कि मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि जब पेड़ के ऊपर से टोपी नीचे गिरी तो पेड़ के ऊपर से टोपी नीचे गिरी तो ऐसा क्यों हुआ कि वो नीचे धरती की तरफ आकर्षित हुई? क्योंकि धरती में चुंबकीय फोर्स है, जिस फोर्स ने जो है टोपी को अपनी तरफ खींच लिया। तो बताओ बच्चों, क्या बताया मैंने? धरती में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तभी तो जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट जैसे ही मैं नीचे गिराऊंगी तो नीचे ही इतनी तेजी से गिरा क्योंकि द अर्थ है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके मैम, हैव अ सीट। थैंक यू मैम। मैम आप बताइए कि निपुण भारत क्या है? निपुण भारत एक प्रोग्राम है। अब फुल फॉर्म इसकी है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोविएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अब ये प्रोग्राम है जो कि एफएलएन के टारगेट्स को अचीव करने के लिए बनाया गया। अब एफएलएन का टारगेट निपुण के अकॉर्डिंग 26-27 तक अचीव होना चाहिए। तो अब निपुण, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि अब बच्चा फाउंडेशनल रीडिंग, राइटिंग और न्यूमेरेसी को निपुणता से सीखेगा। और जब हमने बुनियाद ही बच्चे की मजबूत कर दी तो आगे भी वो पूरा भारत निपुण हो जाएगा और इंडिपेंडेंट होके आगे कॉम्प्लेक्स क्लासेस में उसकी जो लर्निंग है वो एक इजी फ्लो में होगी। ओके मैम, निपुण भारत को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि हमारे बच्चे ठीक से पढ़े लिखे और परफेक्ट हो जाएं पढ़ने लिखने में और उनको गणित का ज्ञान पूरे प्रकार से हो जाए, उसके लिए निपुण भारत ने क्या इम्प्लीमेंट किया, क्या रिसोर्सेस लाए? वो निपुण भारत जो इम्प्लीमेंट हुआ, सबसे पहले विद्या प्रवेश गाइडलाइन इंट्रोड्यूस की गई ग्रेड 1 मॉड्यूल 1 में। विद्या प्रवेश गाइडलाइन क्या है? एक थ्री मंथ का प्लेवे बेस्ड प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम के तहत हम क्लास 1 के बच्चों के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी पे काम करेंगे, जिससे कि बच्चा आसानी से रीडिंग, राइटिंग और न्यूमेरेसी, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेगा। एंड दूसरा प्रोग्राम लॉन्च हुआ निष्ठा एफएलएन। निष्ठा एफएलएन इज अ प्रोग्राम जो कि ट्रेन करता है टीचर्स को और हेड टीचर्स को फॉर द होलिस्टिक एडवांसमेंट। एंड ऑल्सो जो निष्ठा है वो एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि टीचर्स को मॉडर्न मेथड्स से रूबरू कराता है और उनको मॉडर्न मेथड्स में ट्रेन करता है। एंड जो थर्ड है हमारा दीक्षा। दीक्षा जो है एक कोविड के टाइम पे आया। देखिए मैम, कोविड के टाइम पे क्लासेस लेनी बहुत मुश्किल हो रही थी, ऑफलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन क्लासेस में भी काफी ज्यादा बैरियर्स क्रिएट हो रहे थे। तो जो लर्निंग गैप क्रिएट हो गया था कि अब टीचर और स्टूडेंट अक्रॉस द नेशन आपस में लर्निंग एंड टीचिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए दीक्षा एप्लीकेशन बनाया गया, जिस एप्लीकेशन के थ्रू डिस्टेंस मोड से भी स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में जो शिक्षा का आदान प्रदान है, टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाए। ओके मैम, ऐसा करिए आप एक डेमो देके दिखाइए।
जिसमें कि वेरी क्लियर हो जाए कि आप 3 to 6 years के बच्चों के लिए ऐसा क्या क्लासरूम में इन्वायरमेंट लाएंगे कि अब उनको सही बिल्कुल ठीक से निपन भारत के अकॉर्डिंग जब वो क्लास 3 तक जाए तो वो वेरी परफेक्ट हो के लिखना पढ़ना और गणित ढंग से कर सकें। तो उसके लिए आप अपनी क्लास में ऐसा क्या टॉपिक देंगे कि अब वो बिल्कुल सटीकता से क्लास 3 तक पहुंचने तक सही से लिखना पढ़ना और गणित करना और फिर उन सभी क्वेश्चंस को सही से समझना, समझकर खुद से आंसर क्रिएट करना, उनका क्रिएटिविटी बढ़ जाए, परफेक्शन उनमें आ जाए। तो आप ऐसी कौन सी डेमो दोगे क्लास पे, क्या पढ़ाओगे आप डेमो? मैम मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं मैम, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स, स्क्वायर ऑफ शेप, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल। बच्चों को इनके फॉर्मूलाज क्लियर नहीं होते ना, प्रॉपर्टीज, तो मैं इनको प्लेवे मैथड से करके दिखाऊंगी, आपको बोर्ड पे करके दिखाती हूँ। ओके, हैव यू? थैंक यू मैम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? शेप्स के बारे में। अब आप क्लासरूम में देख रहे हो कि 2 टाइप्स की विंडो आपको दिख रही है। यस, ईश्वरीत आप बताओ, ये वाली जो विंडो क्लास में लगी है, ये जो ब्लैक बोर्ड है, ये कौन सी शेप का है? रेक्टेंगल। और ये जो सामने विंडो लगी है वो कौन सी शेप की है? स्क्वायर। ठीक है, तो अब बच्चों आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे रेक्टेंगल और स्क्वायर को? क्योंकि क्या ऐसा हो सकता है कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर जैसे लगे? नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल अलग लगता है, स्क्वायर अलग लगता है। देखो कैसे, ये हमें क्या कौन बताता है? प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी हम किसकी बात करेंगे? स्क्वायर की। स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा? कि ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। नोट करो, पहली प्रॉपर्टी स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल। और दूसरी प्रॉपर्टी की ये देखो, ये इस तरीके के एंगल को हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। जितने भी कॉर्नर्स होते हैं स्क्वायर के, वो क्या एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। तो अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कि अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो रेक्टेंगल के भी सारे कॉर्नर्स 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये थोड़ी रहस्यमय बात नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, ये स्क्वायर विंडो है, ये रेक्टेंगल है, कैसे पता चला? देखो, इसमें क्या थी? स्क्वायर में ऑल द साइड्स और स्क्वायर इक्वल थी। इसमें क्या हुआ कि ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की है इक्वल एंड पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। यानी ये लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऑपोजिट वाली लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी। और ये ब्रेथ है, तो ब्रेथ अगर 3 सेंटीमीटर है तो उसकी ऑपोजिट वाली ब्रेथ भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो बेटा आपको क्लियर हुआ कि ये विंडो में हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि कैसे वो स्क्वायर बनी और कैसे वो रेक्टेंगल बनी। ओके मैम, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस बता रहे हैं आप? मैम, स्क्वायर और रेक्टेंगल में ये डिफरेंस है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल है और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है। जैसे लेंथ की, जैसे 4 लेंथ है तो उसकी ऑपोजिट भी 4 लेंथ इक्वल है, और एक ब्रेथ 3 है तो उसकी ऑपोजिट भी 3 सेंटीमीटर है। ओके फाइन। नेक्स्ट मैम, सर्कल में सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होता है? देखिए, और डायमीटर और रेडियस का क्या रोल होता है उसमें? मैम आपने मुझे क्या बोला है कि मुझे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हाँ, बट मुझे पढ़ाना कैसे है?
प्लेवे मेथड से। ओके, तो मैं बच्चों को, क्या आपके पास कोई तार का टुकड़ा है? नहीं, तो मैं बच्चों को एक तार का टुकड़ा दूंगी और उनको कहूंगी ये तार का जो टुकड़ा है ना, इसको राउंड बनाओ। तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर की हम कैसे बच्चों को सिखाएंगे? ऑल राउंड। चंदा मामा गोल गोल, पापा का पैसा गोल। तो इससे बच्चे किसको आइडेंटिफाई करेंगे? ऑल राउंड सर्कल की शेप को। गुड। अब जब बच्चे ने इसको आइडेंटिफाई कर दिया, अब मैं बच्चे से पूछूंगी ये जो आपने तार से ऑल राउंड बनाया है वो क्या रहेगा? उसका पेरीमीटर। और जो पेरीमीटर होता है सर्कल का बेटा, वो क्या होता है सर्कल का? सरकमफ्रेंस। और कैसे निकालोगे? कितनी तार लगाई आपने, वो किससे निकालोगे? सरकमफ्रेंस, जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। और 2 पाई आर। और ये आर क्या है बेटा? देखो, अब आप ना बच्चों को मैं बोलूंगी कि आप जो है अपना हैंड लो और हैंड से ऐसे ड्रॉ करके देखो। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे हम बच्चे को, अभी बच्चे छोटे, हम कंपास नहीं दे सकते, तो हम एक एक बच्चे को मैं करूंगी, 1-2 बच्चों को उसको नहीं, हैंड करो और ऐसे सर्कल बनाओ। कैसे बनना? ऑल राउंड। तो जिस पॉइंट पे आपने थंब रखा वो क्या हो गया? सर्कल का सेंटर। अब मैं बात करूंगी सेंटर से इधर तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो अब ये जो रेडियस है, ये रेडियस 3 मीटर है, तो इसमें हम क्या डाल देंगे? 3 मीटर। तो हम क्या निकाल लेंगे? वायर क्या? सरकमफ्रेंस। वाओ मैम, ये पाई क्या है? पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब या फिर पाई की वैल्यू 3.14 ले सकते हैं। देखिए, अगर मैं पाई की हिस्ट्री में जाऊं तो पाई जो है हमारा, पाई हमारा, देखिए अगर मैं पाई को 22/7 को डिवाइड करूं, 22 को अंदर और 7 को बाहर रख के, तो 3.1478, ये बार बार एक ही वैल्यू रिपीट नहीं होगी, मतलब अगेन एंड अगेन नंबर आता जाएगा। तो जब, और ये पाई की वैल्यू कभी एंड नहीं होगी, मतलब अब जो रिमाइंडर है ना मैम, डिवाइड करने पे 0 नहीं बन रहा। तो अब जब ये वैल्यू चलती जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और ये वैल्यू मैम रिपीट नहीं हो रही। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, 0.6 के बाद लूं 0.666, तो ये टर्मिनेट हो रही है बट ये रिपीट हो रही है, बट इधर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। तो पाई हमारा क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। गुड मैम, ईवीएस स्टार्ट करते हैं। बताइए, हाउ वाज पेट्रोलियम फॉर्म्ड? Petroleum was formed under the seawater when millions of years ago all the creatures of sea got buried under the layers of sea, and then because of the sea and earth crust heat, and millions of years ago it took place, and all the buried fossils, the fossil dead buried or plant of the sea creatures got converted into petroleum. ओके मैम, क्या पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं? Yes. प्लेवे तरीके से बताओ, क्लास एनवायरनमेंट। और 3 to बाल वाटिका स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो हम बच्चों से हम पूछ सकते हैं कि आपका खाना कौन बनाता है, तो बच्चे जवाब देंगे कि हमारा, कोई बोलेगा मेरी मम्मी बनाती है, कोई बोलेगा मेरी दादी बनाती है। तो उसी तरीके से प्लांट्स के पास कोई ना मम्मी है ना दादी है जो उनका खाना खुद बना दे, तो प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आपने बच्चों रोटी बनाई, बच्चे बोलेंगे यस रोटी बनाई, तो जो बच्चों ने रोटी बनाई उस रोटी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज हुए? आटा, वाटर एंड घी। उसी तरह प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, बाय taking some inorganic substances like CO2, water in the presence of sunlight and chlorophyll, and it form the glucose. Glucose is the food for the plant which help to utilize the plant. And one more byproduct
comes under this reaction, which is oxygen, and oxygen is useful for all the human beings and living organisms in this earth. मैम इसका मतलब क्या हुआ कि खान पेड़ को ने खाना बनाया तो उसको क्या क्या यूज किया, उसने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज किए? यस मैम, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हम ये जो पेड़ है, पेड़ की जो रूट्स हैं, रूट्स में क्या क्या डालना पहले इंग्रेडिएंट? वाटर। ठीक है, वाटर के बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट प्लांट यूज करता है वो एयर से क्या लेता है? CO2। तो वाटर और CO2 और एक किसकी प्रेजेंस में होगा? सनलाइट, जो किससे मिलती है प्लांट को? सन से। और प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है? क्लोरोफिल। ठीक है, फर्स्ट क्लास का टॉपिक है ना? फर्स्ट क्लास का टॉपिक है मैम, ये 5th क्लास का टॉपिक है। ओके, 5th क्लास का टॉपिक। यस मैम। ओके ओके। तो प्लांट क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस O2। ये बाय प्रोडक्ट होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये मैंने फूड फॉर प्लांट है, ये मैंने इसका रिएक्शन फॉर्मूला लिख दिया ग्लूकोज का। एंड ये क्लोरोप्लास्ट में होती है क्लोरोफिल। मैम 5th क्लास का बच्चा इसको कैसे अंडरस्टैंड करेगा? यस मैम, बताइए। ओके मैम, ठीक है। अब बच्चों, ये तो मैंने आपको आंसर दे दिया कि मुझे कितना क्लियर है। अब देखिए, ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, प्लांट के नीचे क्या है? रूट्स। रूट्स में सबसे पहले बच्चों को बताऊंगी कि हम पौधों में पानी डालते हैं। बच्चे बोलेंगे हाँ। जब जैसे हमने पौधे में पानी डाला तो रूट्स ने वाटर सिप कर लिया और वाटर हर पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंच गया। तो बच्चे बोलेंगे यस मैम। तो वो बच्चों बोलो, पहले इंग्रेडिएंट क्या बना? वाटर, प्लांट का फूड बनने के लिए। और अब प्लांट को दूसरा इंग्रेडिएंट क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो अब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से लेता है? एयर से। हम ह्यूमन बींग्स जब ब्रीथ आउट करते हैं, हम उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज आउट करते हैं। तो अब प्लांट के पास लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर टाइनी पोर्स होती हैं। इन टाइनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू CO2 पूरे प्लांट में इन करती है, मीन्स इंटर होती है। द CO2 enters the plant through tiny pores called stomata. So अब दूसरा इंग्रेडिएंट प्लांट को क्या मिला? CO2। अब देखिए, ये जो रिएक्शन है ना मैम, ये सनलाइट के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो सकती है। और ये लीफ के अंदर एक नेट जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल के कारण ही जो पत्ते हैं वो ग्रीन होते हैं। तो अब किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और ये रिएक्शन होने के बाद प्लांट में क्या बना? मैंने आपको मैम बता ही दिया था, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज। ओके, थैंक यू मैम। ओके, फिनिश। सो फ्रेंड्स, आप सबने देख लिया कि यह एक मॉक इंटरव्यू था जो कि PRT के लिए स्पेशली बनाया गया था। ये वाली डेमो क्लास, इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं, दिस इज फॉर ऑल द PRT, TGT, PDT एस्पिरेंट्स। तो सारे तैयारी करके जाना। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। लाइक, शेयर, प्लीज। इस वीडियो को मेहनत लगी है बनाने में आप सबके लिए। आप सबके कॉमन पेपर की भी प्रिपरेशन इसी चैनल पे होगी हमारे एफर्ट से। तो प्लीज मैडम यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, कमेंट करो किस वीडियो पे टॉपिक चाहते हो। थैंक यू।